తర్వాత మేము ఇంత క్లియర్ రాసిన ఉంటే ఆయనకు ఢిల్లీకి నాక్సిలిజం అనేది పోవాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రేక్ చేయాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యోగాలను మీరు అన్ని తీసేసుకుంటున్నారు. వాడు పైకి రాకుండా చేస్తున్నారు, వాడు భూములను కొనేస్తున్నారు. కనుక నాక్సిలిజం ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, వీళ్ళకి ఆంధ్రాకు పోతాను ఈ నాక్సిలిజం సిద్ధాంతాలకు దూరం అనేది ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు. తెలంగాణలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు ఆ ఫిలిమ్స్ కూడా ఈ నంది అవార్డు ఇంకేదో ఆడంటారు, నంది అవార్డు సమ్మె అవార్డు ఇస్తుంటారు, ఏదో చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేసినట్టే, ఇప్పుడు మేము అణుచున్నాం కాదు, వీళ్ళందరినీ ఎవరైనా మొత్తం నేషనల్ లీడర్స్ మొత్తం ఆంధ్ర, ఆల్ ఆంధ్రాస్. ఇప్పుడు మాకు వాళ్ళంతా పోయి జంగల్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఛత్తీస్గఢ్లో చేసింది ఎవరు? ఆంధ్రలో చేసింది. అదే పేపర్లు వచ్చింది, అదే స్కాన్ చేసి పెట్టిన. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న రోజు నేషనలిజం ఉంటుంది. ఈ నేషనలిజం దేశానికి ఎట్టుంటుందో మీరు మొదలు పెట్టేది. మీ నేషనలిజం వాళ్ళ పిలవండి, ఎక్కడ ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఉన్నదో వాళ్ళ ముగ్గట్టే వాళ్ళతో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అండ్ కాల్ ఇట్. అండ్ తెలంగాణ పీపుల్ దే ఆర్ వాట్ పీస్ లవింగ్ పీపుల్, దే నెవర్ వాట్. ఇప్పుడు చూడండి, తెలంగాణ వాళ్ళు సంపాదించుకుంటే 1000 మంది కాదు, 10,000 మంది మేము తాగకూడదు, కానీ వాళ్ళు తాగట్లేదు. దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ టేక్ వాట్ we have what IP, not only for politicians, various what the government agencies you are writing into the police departments. ఏదో సంజయ్ బాబు అడిగాను, నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ అవి కడతాను. ఇది ఎందుకంటే సారీ, ఎందుకంటే ఇటువంటి వాటి సోకాలు తీసుకుంటే ఇరిపోయినప్పుడు ఈ సెటిలర్స్. అరే మీరు అంటారు కానీ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాను కానీ సెటిలర్ ఇట్లా అవుతాడా? ఇది మంచి ప్రశ్న. ఒకసారి బాగారెడ్డి గారు నాకు ఒక గ్రూప్ అంటే జనగామ టీచర్, ఈ స్టార్టెడ్ కెరీర్ అదే టీచర్ బాగారెడ్డి మేదర్ ఎంపీ జనగామ టీచర్, ఇవాళ నా క్లాస్ టీచర్, తర్వాత చదివాను. అయితే ఆయన దగ్గర రెగ్యులర్ పోయి ఉంది పాపం ఉత్తముడు. ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ వెంకయ్యనాయుడు కాంటెస్ట్ ఓడిపోయాడు. దేవ్ సార్ వెంకయ్యనాయుడు గారిని ఓడిపోయాడంటే పాపం అమ్మాయి పడింది సౌమ్యుడు. यहाँ नैया नाजी उस वक्त आ गया अफेक्ट करता सर इन्हें लोग नागरिक पाप मैंने डिफरेंट वर्ड आई लर्न से क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं डायर दर्शन अड़ा सरमत जन डायर वे ना डायर तात इंडिया को వచ్చు ఇప్పుడు వెంగళరావు ఇక్కడ కూడా చెప్పుకుంటా కదా, ఉండవల్లి చెప్పిన ఉండవల్లికి లెటర్ రాసిన, అరే ఉండవల్లి వెంగళరావు గారికి ఇక్కడ వస్తే డైర్ కూడా ఇక్కడ ఉండే. వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇంట్లో వాడు అమృతం డైర్ ఇది అనుకుంటా, జిన్నా అనుకుంటా, జిన్నా సంగతి ఆయనకి ఏం తెలుసు పెట్టాం, కాసం రాజు సంగతి ఆయనకి ఏం తెలుసు పెట్టాం. అరే ఒక్కరు పుట్ట చేయడం, అరే తుర్కోడు చేయరు, హిందూ లేడు, ఎవరు చేయరు ఉండవాలంటే అరే వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్. ఐ నోట్ వాట్ ఈస్ సచ్ ఎ స్టిక్కర్ టు హిమ్. అక్కడ ఏమైతుంది, ఎవ్రీబడి వాడు తెలంగాణ ఇక్కడ అంటే అందరు ఇక్కడ ఈ కాఫీ ప్రజలు ఉన్నట్ట ఏం మాట్లాడారండి, ఇది ఇన్సల్టింగ్ అస్. అయితే డయర్ తాత ఇండియాకి వచ్చింది, వచ్చి ఫస్ట్ బ్రేవరీ అంటే ఇండియాలో మొత్తం బీర్ ఏ విధంగా డయర్ మెమరీస్ ఉన్నది చూడండి, వాడు తాత స్టార్ట్ చేసాడు. ఏది హిమాచల్ ప్రదేశ్ సోలాన్లో. అదేవిధంగా ఇడ్లీ కూడా యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యువర్ ఆంధ్ర. ఆయన నేను ఎందుకు చెప్తాను, అండి రండి అంటుంటారు కదా, అండి రండి రండి ఇదే రండి అంటారు, రండి రండి అంటే ఆడవాళ్ళు చూసి రండి రండి ఆమె రండి అదే ఇక్కడ రమ్మంటారా చెప్తున్నా. ఇది ఈ భాషలో ఇది కదా, ట్రూత్ఫుల్ టు ఇట్ కాస్. అయితే ఫైనల్గా నేను 2 నిమిషాలు కూడా ఎక్కువ కార్యక్రమంగా మొన్న ఏం జరిగిందంటే, నిజానికి కాంగ్రెస్ తెలంగాణ అంటే వాళ్ళ లాభం అయితే ప్లీజ్ మన మీద ప్రేమ ఉంది కాదు ఇవ్వాలని దే హ్యావ్ మెంటల్లీ డిసైడ్ డిఫరెంట్ ఇస్తుందా. ఇప్పుడు చెప్తాను, గోపాల్ రెడ్డి అని వన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ నల్గొండ, ప్రజెంట్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. బికాజ్ మై స్టూడెంట్ అకాడమిక్ హిస్టరీ. నేను అప్పుడప్పుడు టెలిఫోన్ చేస్తుంటే సార్ ఈసారి మాత్రం కదలిక ఉంది సార్, హోమ్ మినిస్ట్రీలో కదలిక ఉంది, సెక్రటరీలో ఇట్ విల్ ఫాల్, బట్ డీటెయిల్స్ ఐ డు నాట్ నో. బట్ మా దగ్గర రాలేదు తెలంగాణ ఇలాంటి ఏం లేదు, తెలంగాణ ఫైల్ నడుస్తుంది సార్. అండ్ పాఠక్ అండ్ మైసెల్ఫ్ ఇట్ మేక్ వెరీ క్లియర్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని ఎమ్మెల్యే గారిని సాయంత్రం చూసిన అన్న
నీ అల్లుడు చెప్పినాడు, అవును నువ్వు చెప్పినట్టు చలో వాటిని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళినా డ్రెస్ తీసుకెళ్ళినా ఈ బోత్ హ్యాండ్ తీసుకుంటా దాన్ని తీసుకు. అయితే అక్కడ క్లియర్గా అవుతున్నదంటే ఇవ్వడానికి క్లియర్ ఉన్నది. ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారంటే బొత్స సత్యనారాయణ బొత్సన బొత్స నాలుగేలా క్షమించాలి, బొత్స నాలుగేలా అవుతుంది క్షమించాలి. వీళ్ళందరూ మీ అంతా రిజైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దే హ్యావ్ థ్రెటన్డ్ దట్ విల్ రిజైన్ ఇంక్లూడింగ్ స్పీకర్. బ్లాక్ మెయిల్ టాక్టిక్స్ అండి. దానివల్ల ఏంటంటారో ఈ సోకాల్ అదే డాక్టర్ అరుణాథ్ గారు కూడా తెలుసు దీనివల్ల ఆగింది. హౌ టు సాల్వ్. అందుకని ఇప్పుడు వాటి వ్యాధి నన్ను కూడా కరెక్ట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇచ్చే పరిస్థితి వాడు ఉండేది. ఎందుకంటే వాడు ముందు బెంగారు. ఇప్పుడు డక్కన్తో ఎవరైతే తమాషలు ఆడాడో, ఔరంగజేబ్ తమాషలు ఆడాడో, ఔరంగజేబ్ బొద్ద ఇక్కడ పడ్డని వాడు కూడా పెట్టు. వేరే జహాంగీర్, షాజహాన్, అక్బర్ ఈ గివ్ ద ఇండిపెండెన్స్ టు ది డక్కన్. అందుకని దీన్ని ఏమంటారు, స్పెయిన్ వల్ల నెపోలియన్ పట్టవేడు, డక్కన్ వలన ఔరంగజేబ్ పట్టవేడు. వాట్ స్పానిష్ షెల్టర్ టు నెపోలియన్, డక్కన్ షెల్టర్ టు మొఘల్. సిమిలర్లీ Telangana also will be the what name burial ground to Congress Party permanent. Thank you very much. Now may I request Tomar ji to speak. आज रोजा रफ्तार पार्टी जो उसका दूसरा दिन है रोजा रमजान का, तो कहते हैं कि रोजा के दिन एक महीना भगवान अल्लाह मियाँ लोगों के नज़दीक रहता है, उनकी बातें सुनता है। तो मेरा उस अल्लाह मियाँ से यही रिक्वेस्ट है कि इस तेलंगाना के दलालों को जरा सद्बुद्धि दे और इस एक महीने की जो ये रोजा रमजान का दिन जो महीना होता है, इसी में तेलंगाना को बना दे। मैं 25 साल से लगभग तेलंगाना में आता हूँ और छोटे बड़े नेता, दलाल, प्रोफेसर, इस तेलंगाना मूवमेंट ने बहुत कुछ दिया। ये सिर्फ किसी को नहीं दिया तो जो लोग आत्महत्या करके बेचारे, और आगे भी मैं चाहूँगा कोई ऐसी आत्महत्या न करे, जल्दी से ये बनने वाला भी नहीं। ये कांग्रेस का जो झुलमुल जो तरीका है, कभी अभी इन्होंने एक और कमेटी बना दी, तो इस तरह की कमेटी ये 57 साल से चली आ रही है तेलंगाना के ऊपर। लेकिन तेलंगाना ने बहुत से लोगों को अमीर बनाया, नेता बनाया, बहुत पैसे वाले भी बना दिए। तेलंगाना ये एक, मेरा तो जुनून है, लेकिन लोगों का तो ये व्यापार हो गया। और उसी तरीके से अभी एक एमपी पीछे मीटिंग आ गई हमारी, यहाँ मीटिंग की जो दिल्ली में बुलाई थी, उसमें कांग्रेस के एक एमपी थे, वो कह रहे थे कि तेलंगाना के लीडर्स सामने तो कहते हैं कि तेलंगाना बनना चाहिए, लेकिन पीछे से हमको कहते हैं कि अभी जरा रुको। इस तरह की बातें, नायडू भी अभी आ गया। पीछे जब अडवाणी जी टीम राज बना रहे थे तो हमारी फेडरेशन कब भी थी, तो अडवाणी जी ने कहा कि भाई अजीत सिंह ने एक प्रस्ताव रखा कि इसके साथ साथ तेलंगाना और कुछ खरीद प्रदेश या ये भी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आने दीजिए, तेलंगाना का प्रस्ताव आएगा उसको भी बना देंगे, और हर एक प्रदेश का या बुंदेलखंड का कोई प्रस्ताव आएगा उसको भी बना देंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही बात क्लियर करने आया हूँ कि अभी जितने भी अभी 4-5 मुख्यमंत्री आपके बदल गए, और एक
पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा हुआ, कांग्रेस के एमपीओ ने इस्तीफा भी दिया, मंजूर नहीं हुआ, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ। और चंद्रशेखर राव जो TRS है उसका जन्म इस तेलंगाना मूवमेंट में हुआ, तेलंगाना भवन भी बन गया और चंद्रशेखर राव और अमीर भी बन गए, और भी बहुत से लोग अमीर बन गए। जब तेलंगाना की बात आ रही थी तो हमारी पूरी, आपको बात बता रहा हूँ, पूरी कमेटी थी फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, चंद्रशेखर राव वहीं जाते थे, वहीं से निकले, इनको हमने अध्यक्ष बनाया। तो सोनिया गांधी एक मीटिंग कर रही थी पार्टी, तो हमने कहा शिबू सोरेन भी हमारे साथ हैं, अजीत सिंह भी हमारे साथ हैं और चंद्रशेखर राव भी हैं, तो 25-30 एमपीओ की जरूरत थी। ये सारे एमपी फेडरेशन के लोग थे जो छोटे राज्यों की मांग करते थे। तो मैंने चंद्रशेखर राव को भी कहा कि आप लोग अभी मंत्रालय मत दीजिए, अभी फैसला हो जाने दीजिए। लेकिन लोग इतने लालची थे कि पोलियो मिले ना मिले मंत्रालय मिल गया, तो मंत्रालय भी मिल गया, कोठी भी मिल गई। हमने फिर चंद्रशेखर राव से मिले, हमने सोचा कि शायद कांग्रेस में अंदर जाने से तेलंगाना मिल सकता है। हमने उसकी कोई बुराई नहीं कर, उनकी सोच हो सकती है कि कांग्रेस के साथ जाने से तेलंगाना मिल सकता है। जब उनकी सोच बुद्धि पलटी तो वो फिर जंतर मंतर पर आए, मेरे को फोन किया कि जंतर मंतर पर मैंने धरना देना है। मैंने कहा भाई जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए फिर आ गए। अभी पिछले समय हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमारी फेडरेशन के लोग, तेलंगाना के लोग भी थे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भाई तेलंगाना का इतने लोग मर चुके हैं, अब तेलंगाना क्यों नहीं बनाते, क्या वजह क्या है? संविधान की धारा के अनुसार, 3 के अनुसार कोई भी सरकार जिस बहुमत में है उसी बहुमत में किसी राज्य का निर्माण या नामकरण कर सकती है, ये संविधान में है। यही बात हमने अडवाणी को कही थी, उन्होंने कहा हमने प्रस्ताव मांगा है, तो मैंने के विरोध में कि प्रस्ताव मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्रस्ताव की जरूरत तो जब हो जब आपका संविधान के अनुसार आप चलते, जब आपका संविधान कहता हो तो प्रस्ताव मांगिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने प्रस्ताव मांगा है, प्रस्ताव आ जाएगा, तेलंगाना बना देंगे। मैंने कहा 294 MLA टोटल आंध्रा के हैं, 107 तेलंगाना के हैं, तो अगर सारे भी उसमें वोटिंग करें तो प्रस्ताव विधानसभा में, आंध्रा विधानसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए आपका तेलंगाना बनाने का विचार नहीं है। सामने फेस टू फेस तेलंगाना प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हुई, और मैं बहुत कड़क बोलता हूँ और उल्टा पुल्टा भी बोलता हूँ। तो मैंने कहा मायावती ने प्रस्ताव पास कर दिया, आप उसको बना दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि वो प्रस्ताव हमने मांगा नहीं था और ये प्रस्ताव मांगा है, ये मिला नहीं। हमने कहा ये प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी, संविधान के अनुसार हम संविधान का वो भी लेंगे लेटर, और दिखा के जरूरत ही नहीं है, धारा 3 के तहत बन सकता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि अरे बाबा मैं 2-3 बार उनसे मिल चुका हूँ, कहीं और भी मिलता हूँ तो मैं कोई बात कर देता हूँ तेलंगाना की। तो कहते अरे बाबा वाली सरकार है, तेलंगाना तो बन नहीं सकता। मैंने कहा जब वोट लेने जाते हो 543 MP पार्लियामेंट में है, देखिए आप 149 कांग्रेस के हैं, और अगले 20 वर्ष में मेरा जहां तक मानना है कि कोई भी सरकार अपने बूते पर हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। पीछे नायडू ने मना कर दिया, अब की बार क्या बातचीत चल रही है, यानी कि मिली-जुली सरकारें आएगी तो तेलंगाना राज्य बनने की जो रोज आस लगती है कि आज तेलंगाना बना, आज तेलंगाना बना, आज तेलंगाना बना, तो वो आस खत्म नहीं होती। कारण ये 543 में मैंने कहा आप 149 आपके MP हैं और आप रूल कर रहे हैं सबको लेकर के,
और वहां से आप प्रस्ताव मांग रहे हैं 117 में, जबकि 117 में दूसरे लोग भी हैं। तो मैंने कहा ये तो आप कोई भी बनाने की बात आप लोग नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो दिग्गी राजा कह रहे हैं, जो कमेटी बनी है, आपके मुख्यमंत्री वहां गए, डिप्टी सेक्रेटरी वहां गया, पूरी कमेटी की मीटिंग हुई, क्या वो पॉसिबिलिटी हो गई है? क्या प्रस्ताव पास हो गया? फिर वही बात आएगी। अब वोटिंग के तरीके से लोग देख रहे हैं कि आंध्रा में क्या होने वाला, सब जगह क्या होने वाला। तो हमने वही बात अब लोगों के सामने रख रहे कि तेलंगाना का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तेलंगाना का मुद्दा तेलंगाना का नहीं रहा, ये पूरे राष्ट्र में हम जाएंगे, पूरे राष्ट्र में अभी जा रहे हैं और पूरे राष्ट्र का ये मुद्दा है। अगर यही बात है, आज मैंने अजीत सिंह के लड़के को भी कहा, वो भी आज आरएलडी वाले आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ अपनी पार्टी खोली है। ऐसे लोग पार्टी खोलते फिर हमने कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए और दलीप सिंह को भी ले लीजिए। मैं तो सिंह कहता हूँ, उनको कुमार भी कहता, दलीप सिंह को भी ले लीजिए। और एक कांग्रेस के एमपी आए हुए थे, मैंने कहा ये तो भाई गुप्तवान बोलते हैं, इनका तो कोई विश्वास है नहीं। हाँ, तो मैंने कहा इनको अध्यक्ष बना लीजिए। और आप पार्लियामेंट में आज साफ बात हुआ है, ऐसा नहीं कि साफ बात नहीं हुआ। 149 ऑल पार्टी मीटिंग जेएसी जो आपकी है, तेलंगाना प्रजा समिति क्या है, उसने दिल्ली मीटिंग की। वहां भी मैंने ये कहा, अरे तुम पार्टी के लोग क्या लेने आ रहे हो? कांग्रेस के कितने एमपी हैं और तुम लोग कितने हो? झूठ मूठ की बातें क्यों करते हो? आप लोकसभा में प्रस्ताव लाइए, सब पास कर दीजिए। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का तो हाल ही, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। 394 एमपी कहते हैं कि तेलंगाना बनना चाहिए और तेलंगाना बनता नहीं, और 149 कहते हैं कि प्रस्ताव लाओ। तो क्या है ये मामला, क्या है? आप समझिए कहाँ ये मामला है। तो आज हमने आज भी इनको साथ कहा कि भाई अब आरएलडी के भी 5 है, यानी कि मुद्दों को लेके ये लोग आरक्षित हो जाते हैं, मंत्रालय ले लेते हैं, लाल बत्ती ले लेते हैं, पैसा बटोर लेते हैं। तेलंगाना का मुद्दा आज तक इसीलिए छाया रहा और ये बना नहीं। टीवी चैनल वाले, मैंने टीवी चैनल वालों को भी कहा, साहब हमारे खास दोस्त हैं यादव जी, ये कहते हैं तेरा गाना मेरा गाना सबका गाना गाओ तेलंगाना। दिल्ली में तो बहुत बार मीटिंगें होती हैं। मैं उसमें यही कहता हूं कि भाई तेलंगाना राष्ट्र का मुद्दा बनाओ। अगर राष्ट्र का मुद्दा नहीं बनेगा तो ये लोग इसको हमेशा की तरह ऐसे ही फंसाए रहेंगे। ये राजनीतिक पावर, अगर जब तक राजनीतिक पावर नहीं हो, आज राजनीतिक पावर बन जाए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना, हमारे फेडरेशन में यादव साहब भी थे, उसी फेडरेशन के तहत हमने बीजेपी में वो किया। तो काफी एमपी बीजेपी के जीत का है। हमने उनको कहा कि या तो आप प्रस्ताव ला दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। तो मजबूरन होकर के बीजेपी ने ये 3 राज्यों की स्थापना की। आज हम वही पॉलिसी पर चलना चाहते हैं। अगली 14वीं लोकसभा 14 में जो लोकसभा आ रही है, उसमें कम से कम हमारी एक राजनीतिक पावर बन जाए। इसलिए फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट हमारी यह राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम एक 21 तारीख को दिल्ली मीटिंग करेंगे और उसमें हम प्राइम मिनिस्टर से भी अपनी बातें मिलने की कोशिश करेंगे, सोनिया गांधी से भी हम एक बार मिले। तो वो अगर हमारी एक राजनीतिक ताकत इस तरह की बन जाती है, हमने कहा हमें पहले तेलंगाना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरे राज्य की हम बात करेंगे। क्योंकि तेलंगाना का मुद्दा ऐसा है कि ऐसा मैंने बहुत देशों की यात्रा की है, पैदल भारत की किताब भी लिखी है जिसमें मैंने सबका वर्णन किया है कि देश में क्या है क्या नहीं है। तो तेलंगाना
राज्य बने, लेकिन उसमें जो भूमिका है हमारे यहाँ के लीडर्स की और देश के लीडर्स की भूमिका अगर आएगी तो तेलंगाना राज्य की स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगली योजना हम लोगों की है कि हम पूरे देश में तेलंगाना के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। और आज आप भी पहचान गए, जान गए, 57 साल से जो ये मुद्दा चल रहा है, हजारों आदमी आत्महत्या कर चुके। किसी फौज के लिए आत्महत्या करना, इतने आत्महत्या करना बहुत ही मतलब कठिन कार्य है। उसके बाद एक आदमी ने तो वहीं पर जाकर के आत्महत्या की, दिल्ली में जाकर आत्महत्या की, तो कांग्रेस पर जू नहीं जीत रहेगी। तो आप ये समझिए कि तेलंगाना में जो कोई सच्चा है तो जय प्रजा तेलंगाना, यानी तेलंगाना की प्रजा जय बोलने की अधिकारी है, तेलंगाना के लीडर्स नहीं। कभी भी तेलंगाना की प्रजा ने हम लोगों को भी, आप लोगों को भी कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओनली फॉर तेलंगाना, तेलंगाना हमें चाहिए। 16 कहते हैं कि निजाम का 16 खंभों का राज था, तो 3 आंध्रा में चले गए, 4 मेरा ख्याल है महाराष्ट्र में चले गए, 4 कर्नाटका में, 3 महाराष्ट्र में चले गए। तो 10 जो जिलों का जो ये रह गया, उसमें पहला जो वह है हैदराबाद है। अब एक बार मैं आया था पहले इंदिरा रेड्डी के टाइम, मैंने कहा था ये जब ये जो डायना थी यहाँ की महारानी इंग्लैंड की, तो मैंने कहा ये हैदराबाद डायना क्वीन है, डायना सिटी है, ये डायना की तरह इतनी खूबसूरत है कि जब ये इसको तेलंगाना बनाएंगे, तेलंगाना में जाएगी तो आंध्रा वाले रोएंगे। लेकिन मैंने कहा कि एक मैं शादी में यहाँ आया तो शादी में आंध्रा की लड़की थी और तेलंगाना का लड़का था, तो दोनों की शादी में मैं इधर गया था। तो मैंने कहा आज मैं एक बात जरूर कहूंगा और आज भी आप लोगों के सामने कहूंगा। लंदन में मैं गया, लंदन फ्रांस का गुलाम था। लंदन वालों ने सोचा कि कभी भी इंग्लैंड स्वतंत्र नहीं होगा, जिसका पूरे देश पर सत्ता चली दुनिया पर, उसने सोचा कि कभी भी लंदन स्वतंत्र नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी फ्रांसीसियों को देनी शुरू की। तो कहते हैं ये 50 साल तक ये मामला चला, उधर की बेटी उधर, उधर की बेटी उधर। आज वहां कोई जातिवाद, कोई धर्म प्रथा कुछ रही ही नहीं है। तो जब एक दिन बिल्कुल बराबर हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब साले और जीजा की बात है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, अब तो हमें आजादी दे दीजिए, अब तो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो आंध्रा वालों से मैं कहना चाहता हूँ, लड़की देते हो, बेटी देते हो, बेटा देते हो, तो अगर 2 राज्य बन गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। जो ये बॉर्डरेशन जो फैला रहे हैं, ये सिर्फ लीडरों की बॉर्डरेशन है। यही हैदराबाद रहेगा, यही आंध्रा के लोग रहेंगे, यही तेलंगाना के लोग रहेंगे, कोई इधर से उधर नहीं हो रहा। बॉर्डरेशन करने की जरूरत नहीं है। आंध्रा और तेलंगाना मिलकर के बहुत ही एक कंप्लीट, बहुत अच्छा एक शासन, बहुत अच्छा एक राज्य बन सकता है। तो इसलिए आंध्रा वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, रोटी बेटी और राज्यों का भी पुनर्गठन करिए, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए इस विषय को कुछ रायसीमा वाले 2-4 हैं, वो भी एक बार आए थे, उनको कह देना तोमर साहब फेडरेशन के मालिक हैं, उनके पास चले जाइए, भाई तुम्हारा रायसीमा भी बना देंगे, पहले आंध्रा तेलंगाना को बन जाने दो। हमारी फेडरेशन है, हमको तो 50 राज्य चाहिए, तो बाद में उनका भी देख लेंगे, उनको भी अपनी फेडरेशन में मिला लेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग इन नेताओं से सतर्क रहो। तो बात तो उस सिरे चल रही है, हो सकता है कि जल्दी बन जाए। हम लोग ऐसा हम छोड़ने वाले हैं इन कांग्रेस के ऊपर कि जल्दी शायद इन लोगों को डर बन जाए और उस डर से ये आपका तेलंगाना दे दें। हम पूरे देश का डर इनके मत्थे अभी डालने जा रहे हैं, तो उस डर से शायद तेलंगाना दे दें और आप लोगों का भी डर है। तो
आत्महत्याएं लोग ना करें। अभी अगर कुछ लोगों ने मेरे को कहा यूनिवर्सिटी में कि वहाँ अभी लोग कुछ आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो लोगों को समझाइए कि आत्महत्या ना करें। हत्या करने से क्या होगा? तेलंगाना राज्य तो बनेगा और हो सकता है ऐसी चक्र लोग चला रहे हैं हम लोग भी कि इस इलेक्शन से पहले कांग्रेस क्लियर कर दे। अभी हम मोदी को भी बुलाने जा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जोगे तो हम मोदी के साथ चले जाएंगे, हम दूसरे के साथ चले जाएंगे। तो हमारे देश में कम से कम भी 40% जनसंख्या, जिससे 3-4% वोटों की मत हो सकता है आपके फेवर में हो जाए। तो सारा जितना भी कार्ड है हम लोग खेल रहे हैं, क्योंकि मेरा एक जुनून है कि देश में छोटे राज्य होने से देश का डेवलपमेंट होगा, देश की तरक्की होगी और ऑर्गेनाइजेशन और सरकार की दूरियां घटेगी और ये उग्रवाद और ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जय प्रजा तेलंगाना। धन्यवाद तोमर जी। I would like to sum up the entire proceedings for the day. I would not like to hold the meeting for the longer. ఇవాళ చర్చలో మనకు ప్రధానంగా ఎమర్జ్ అయిన ఇష్యూస్ ఏమిటంటే, భక్తులందరూ కూడా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి మనం విశ్లేషించుకున్నట్టయితే కాంగ్రెస్ తప్పనిసరిగా తెలంగాణ వైపు అడుగులు వేస్తున్నది. సరే, ఆ అడుగులు శిశువు తప్పటడుగులు వేస్తూ నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి అడుగులే కావచ్చు, కానీ తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం మాత్రం జరుగుతున్నదనే ఒక విశ్వాసాన్ని భక్తులందరూ వెలిబుచ్చారు. అయితే ఆ ప్యాకేజీ లేకపోతే ఆ అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఎట్లా ఉండబోతుంది అనే దానిపైన మాత్రం కొంత ఉత్కంఠ ఇంకా అట్లాగే ఉంది. దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మళ్ళీ ప్రజలుగా, ప్రజా సంఘాలుగా మళ్ళీ మనం వ్యూహాన్ని రచించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ చర్చని ఇంతటితో ముగిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు వేయాలనుకుంటే తోమర్ గారికి కానీ, యాదగిరి గారికి కానీ, జహీర్ సాబ్కు కానీ వేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. నిన్ననే కోర్టు నిర్ణయం అయితే ఇంకోవైపు మేము చర్చకు రమ్మని చెప్పేసి స్పీకర్ అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి వారందరినీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ.